بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آسما نورین اور میرے ساتھ موجود ہیں فرحان سکندر کھوسا. اور تمام ناظرین کو، ہمارے دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے، پی ٹی وی کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. عید مبارک. اور جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان سے باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام مسلمانوں کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک. اور ہمیشہ پی ٹی وی کی کوشش ہوتی ہے فرحان کہ ہم سب لوگ مل کر جو ہے اپنے ناظرین کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹیں، اور جب بڑی عید آتی ہے تو وہ بڑی خوشیاں لے کر آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایک اور چیز آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کا، اس چیز کا ہمارے ناظرین کو یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ عید کے موقع پہ جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی ہدایات ہیں ان کے مطابق آپ عمل کریں، آپس میں سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، ماسک کا ضرور استعمال کریں. بالکل. عید کی خوشیاں تو ہم نے بانٹنی ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایس او پیز پر بھی عمل کرنا ہے تاکہ ہم اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھ سکیں، اپنا بھی خیال رکھ سکیں. اچھا فرحان، آپ کو تو بہت بہت عید مبارک. ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ تو عید مبارک جو ہے وہ کر لی ہے. آسما آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، تھینک بہت یو سو خوبصورت ڈریس مچ. آپ نے پہنا ہوا ہے. اچھا آپس میں یہ بڑا اچھا کیا آپ نے تعریف کر دی. اچھا یہ ہماری تو چٹ چیٹ ہوتی رہی کہ ہم اپنے معزز مہمانوں کا بھی تعارف کرا دیں. بالکل. ہمارے ساتھ آج پیارے پیارے گیسٹ بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم عید کی خوشیاں بانٹیں گے. وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ تاکہ وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ مل کر آج عید کی خوشیاں بانٹ سکیں. اور ساتھ ہی میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بات کروں گی کہ ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے جو سارا سال انتظار کر رہے ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اپنی عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے. تو آپ نے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جاوید اقبال صاحب، جو کہ چیئرمین بریٹن گروپ آف اسکول اینڈ کالجز. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی علی عمران ممتاز صاحب، جو کہ 2 دفعہ صدارتی ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا جا چکا ہے اور ادب اور سیرت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زبردست. بہت بہت عید مبارک. خیر ہماری مبارک. طرف سے آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. اور میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں جناب شوکت اشفاق صاحب. آپ جوائنٹ گروپ آف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز، کالم نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت گھر سب خیریت ہے؟ عید کیسی گزری ہے آپ کی؟ بہت اچھی. بہت بہت آپ کو عید مبارک ہو. ہم آپ کو بہت ویلکم کرتے شکریہ. ہیں آپ شو کو میں. بھی عید مبارک. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ نادیہ ہاشمی صاحبہ. آپ معروف فوک سنگر ہیں اور اس کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی سطح پہ آپ کے گانے کافی مشہور ہیں. اچھا سب سے پہلے تو جاوید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیسے عید نماز پڑھ کے آئے، تو کیسا عید کا دن گزر رہا ہے؟ عید کا جو آغاز ہوتا ہے وہ نماز سے ہوتا ہے. پہلے تیاری، کپڑے پہننا، نئے سوٹ پہننا، پھر نماز کے لیے جانا. پھر نماز کے بعد عید الاضحیٰ پہ ایک جو بڑی اہم اسائنمنٹ ہوتی ہے، جو فرض ہوتا ہے، وہ قربانی کا ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو قصاب ہوتے ہیں، کسائیوں کا جو ہے نا، اگر آپ کو 1 مہینے پہلے بکنگ اگر آپ کی ہے تو آپ بڑے کمفرٹ زون میں، ورنہ آپ کو پرابلم ہو جائے گا. تو الحمدللہ خیر واپس سے نماز بھی پڑھ لی اور قربانی کے معاملات بھی ہو گیا. اب انجوائمنٹ ہے، ایوننگ میں گیدرنگ ہوتی ہے، فیملیز میں سب لوگ آتے ہیں. تو الحمدللہ اچھی عید گزر رہی ہے. کیونکہ اس دفعہ ذرا آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح پہلے عیدوں کا ایک ماحول ہوتا تھا، اب تھوڑا یہ جس طرح کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ حالات خراب بھی ہوئے، تو اس دفعہ کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اگر آپ ایس او پیز کو پراپرلی فالو کر رہے ہوں، سینیٹائز ہوں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، ایس او پیز پہ عمل کریں، تو الحمدللہ اگر میرے بھائی، میرے بہن بھائی، دوست، فرینڈ، فیملی تھوڑے ڈسٹینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم انجوائے کر سکتے ہیں. بالکل. ایسی بات نہیں کہ ہم انجوائے نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ پہلے سے کم، لیکن انجوائمنٹ چل رہی ہے. لیکن یہ جاوید صاحب یہ بھی دیکھنے میں کچھ سینک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم، کیونکہ یہ ہماری ثقافت بھی ہے عید کے موقع پہ گلے ملنا، اگر گلے ان کو نہ ملا جائے وہ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں. ایسا بھی بڑا دیکھنے میں ویسے یہ شروع میں پہلے زیادہ تھا، لیکن اب کیونکہ تیسری عید آ رہی ہے کووڈ میں، تو اب لوگ اتنا مائنڈ نہیں کر رہے. انہیں بھی پتہ ہے کہ اس طریقے سے بھی اسلام ہو سکتا ہے، ایسے بھی گلے ملا جا سکتا ہے، عید ہماری زبان سے بھی کہا جا سکتا ہے. تو اب وہ ریشو کم ہو چکی ہے. کیونکہ اس حالات میں تھوڑا اپنے پیاروں کا بھی آپ کو خیال رکھنا ایسے اپنی فیملی کا، اپنے پیاروں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. اس چیز کا لازمی خیال رکھنا. اس کے علاوہ جاوید صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور اس کے علاوہ آپ چیئرمین ساؤتھ پنجاب پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں. کیسے مینیج کرتے ہیں؟ فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں آپ؟ فرحان بھی ایک بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی انسان کا کوئی مشن ہو اور پھر اسی کا وہ پیشن بھی ہو، وہ اس چیز سے پیار کرتا ہو اور پھر اسی پروفیشن کو اڈاپٹ کر لیں،
یہ 3 چیزوں کے ساتھ بھی انسان جو کام کرتا ہے اسے وہ تھکتا نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم بہت سے لوگ ایسا بزنس کرتے ہیں، ایسی جاب کرتے ہیں جو ہم پسند نہیں کرتے، جس کے سے ہم تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں. میں بائی چوائس ٹیچر ہوں، ایجوکیشن بائی چوائس آیا ہوں، تو مجھے الحمدللہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، میں تھکتا نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ کہ مجھے انر پیس ملتا ہے. جو آپ مینجمنٹ کی بات کریں، میں مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، ریسرچر بھی ہوں، ٹرینر بھی ہوں. تو الحمدللہ چیزوں کو مینیج کرنا، فیملی کو ٹائم دینا، اگر آپ فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے آپ سروائیو نہیں کر سکتے. بہت ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں جن کو لے کر یہ ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں چل رہے ہیں. اچھا شوکت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم جانیں گے کہ عید کا جو دن ہے وہ کیسا گزر رہا ہے. قربانی کے بعد آپ کو بھی کسائی کا مشکلات پیش آئی ہیں کہ ان کو ڈھونڈا، یا آپ نے پہلے ہی بکنگ کرا لی تھی کہ وہ جلد آ جائیں گے؟ اور کسائی کا مسئلہ تو بین الاقوامی ہے، اور خاص کر عید قربان پہ، اور خاص کر عید الاضحیٰ پہ، عید قربان پہ. باقی یہ ہے کہ آپ جتنا مینیج کر لیں تو اس میں مس مینیج ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ وہ کسائی صاحب جو ہیں وہ پھر فون بھی اپنی مرضی سے سنتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب کیونکہ تجربہ بھی کافی ہو گیا ہے تو زیادہ تو دعوی نہیں کرتے، کوئی مطلب تھوڑا بہت چھری چھلا لیتے ہیں. اچھا مطلب آپ خود بھی اس کام میں آ گئے ہیں؟ ہاتھ بٹائی کی حد تک. اچھا بس مطلب ذبح نہیں کرتے؟ مطلب وہ تو خیر ظاہر ہے، پھر ویسے بھی اس کا ویٹ کر کے بندہ غصے میں خود ہی شروع ہو جاتا ہے کہ میں آپ خود ہی کروں. قربانی کا جانور خود آپ لینے جاتے ہیں؟ جی وہ خریدتے. اچھا وہ میں اس میں بڑا چوزی ہوں کہ مطلب اس کو ایک تو خوبصورت ہونا چاہیے، دوسری بات ہے کہ جو اٹریکٹ کر رہا ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ وہ جیب پہ بھی زیادہ اٹریکٹ نہ کرے، اب ساتھ ہی چلنی چاہیے نا. اب یہ ہے کہ میں کہوں کہ اتنے بڑے ایکسپوجر میں جا کے تو میں اتنا وہ کر لوں گا تو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو خوبی آپ بتا رہی ہیں کیسے پاسبل ہے کہ آپ جیب پہ بھاری بھی نہ ہو، اتنی خوبی آپ اٹریکٹیو بھی ہو اور دیکھنے میں خوبصورت ہو جانور؟ بات یہ ہے کہ جس طرح یہ ابھی جاوید صاحب نے کہا نا مینجمنٹ، تو میں بھی طالب علم ہوں مینجمنٹ کے، گفتگو کا بھی. کسی کو گفتگو میں تھوڑا بہت کچھ کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے. مطلب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں بہت واضح سے کہ ایک ہوتا ہے ان نیچرل ریٹ جو مطلب عام طور پہ فیسٹیولز پہ عیدین پہ تو بڑھ جاتے ہیں. نارمل جو ریٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر سارا سال ایک جانور کی خدمت کرتا ہے اور وہ لاتا ہے منڈی میں بیچنے کے لیے تو اس کو اس کا معاوضہ ضرور ملنا چاہیے، اتنا ملنا چاہیے کہ وہ اپنا خوش ہو کے جائے. سو میں اسی تناظر میں بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی جینونلی مطلب اس میں بھی کافی سارے معاملات ہیں کہ ایک بروکر آتا ہے بیچ میں، بروکر کے بعد پھر اور ٹھیکیدار آتا ہے، پھر کوئی 10 جگہ پہ جا کے اگر آپ براہ راست جس نے پالا ہوا ہے جانور اس سے لے لیں تو وہ تھوڑا آپ کو بہتر بھی اس میں مل جائے گا. اگر 4 پیسے فالتو بھی چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، صحیح بندے کے پاس پیسے چلے گئے تو باقی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. علی عمران صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی جانیں گے عید کے حوالے سے. آپ بھی ہمیں بتائیں آپ کا دن کیسے گزرتا ہے؟ عید کا دن ایسے گزرتا ہے جی، میری امی جان جو ہے نا آٹے اور میدے کو مکس کر کے نا پراٹھے بناتی ہیں. اچھا. اور ساتھ جیسے ہی گوشت یعنی کہ آتا ہے قربانی کا اسے پکاتی ہیں. جی بالکل کھا لیا. پراٹھے کدھر ہیں ہمارے؟ وہ ابھی بنے ہوئے ہیں، میں نے خود بھی نہیں کھائے، سیدھا یہیں آ گئے ہیں. تو وہ پراٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ گوشت ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے کھانے کا. آسما اس کے ساتھ ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ 2 دفعہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں اور بڑی مجھے حیرت ان کے جان کے ان کو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کی بک کو بیسٹ ایوارڈ بھی ملا ہے. یہ کیسے آپ ماشاءاللہ کب سے لکھنا آپ نے شروع کیا؟ آپ تو بڑے چھوٹے سے، ہم سے تو کافی چھوٹے لگ رہے ہیں آپ. بالکل 10 سال کا تھا جب میری پہلی کہانی شائع ہوئی تھی. ایک گاڈ گفٹڈ ایک ایسا تھا کہ مجھے علم بھی نہیں تھا کہ کہانی کیسے لکھی جاتی ہے. بس بھیا سے میں نے اپنے کہا کہ میں نے کہانی لکھنی ہے، کہ وہ کہانیاں لکھا کرتے تھے. ان کے دیکھا دیکھی کاغذ پہ کچھ لکھ کر دے دیا، انہوں نے کہانی دیکھی اور ایک ملتان کے اخبار میں دی، وہ شائع ہو گئی. وہ سلسلہ جب شروع ہوا اور یہاں تک پہنچا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں قسمت کا اس میں کتنا ہاتھ؟ قسمت کا بہت بڑا ہاتھ ہے نا. کہتے ہیں لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ جو جو کام ہم نے کرنا ہے وہاں پہ لکھا جا چکا ہے.
تو یہ قسمت کا ہی کھیل ہے، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس راستے پر چلوں گا. مجھے آرمی میں جانے کا شوق تھا. اچھا. ہاں، میں فوجی بننا چاہتا تھا. اکثر خیال میں دیکھتا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ میں دشمنوں کو مار رہا ہوں، شہید ہو گیا ہوں. اس طرح کے نا یعنی کہ ذہن میں خواب میرے تھے، پلانز ہوتے تھے، لیکن آرمی میں تو نہیں جا سکا. تو یہ شعبہ جب اس میں کہانی لکھنا شروع کی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں قلم کے ذریعے جہاد کروں. تو وہ سلسلہ اب تک اس طرح جاری ہے اور قلم کے ذریعے میں جہاد کر رہا ہوں. آپ کو کب اور کس چیز پہ کب ایوارڈ ملے؟ کس 2009 میں میری کتاب شائع ہوئی تھی، روشن روشن میرا دیس، اور اس کتاب پر مجھے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. اور 2018 میں میری دوسری کتاب تھی نور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب پر مجھے ایوارڈ سے نوازا گیا. اور اسپیشلی یہ کتاب جو میں نے لکھی، تیار کی، تو موجودہ حالات کو اس میں نے بیان کر کے اس میں سیرت کے واقعات شامل کیے ہیں. ریسرچ کی پہلے میں نے ان بچوں پر جو 7 سے 12 سال تک کے بچے ہیں، اور وہ بچے مختلف مارکیٹوں میں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یعنی کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے. جب ان سے میں نے کچھ یعنی کہ اسلامک پوائنٹ ویو سے کچھ سوالات کیے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، وطن سے محبت کیا ہے. بس وہ آئیڈیا ذہن میں آیا تو انہی کی یعنی کہ سوچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کتاب نور عالم تخلیق کی. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کتاب ہے. ہم نے آپ کی یہ بک بھی میں نے دیکھی ہے. اچھا، آسمہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہے. بالکل، نادیہ بیٹھی ہوئی ہے اور چپ چپ بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا چلے ان کی طرف فوراً آئے کہ آپ کا جو ہے وہ باتیں اتنی اچھی کر رہے تھے. بالکل. نادیہ آپ بتائیں آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں عید کے دن؟ اس عید پہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، اور موسٹلی جو ٹائم گھر پہ رکا جاتا ہے. اگر کوئی مصروفیت ہو بھی تو وہ شام کو ہوتی ہے، ورنہ چھوٹی عید یا جتنے بھی باقی تہوار ہوتے ہیں ان پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ہم لوگ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. اچھا، کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب عید کا تہوار ہو اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ موجود نہ ہوں. ہم لوگ تو چاند رات بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایونٹ پہ ہوتے ہیں، جب تک ہم ایونٹ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں سب مہندیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، چوڑیاں اور یہ وہ سب مطلب سو چکے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ تب گھر آ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اچھا لگتا ہے یہ بھی، ہم لوگ سب میں جاتے ہیں اور خوشیاں بانٹ رہے ہیں، ان سے پیار لے رہے ہیں، تو ہم لوگوں کی یہ قربانی بھی اچھی لگتی ہے. یہ بھی ایک قسم کی قربانی. آرٹسٹ جو ہے وہ ہمیشہ وہ بھی بڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے، ایک آرٹسٹ کی بڑی. اچھا، یہ آرٹسٹ بھی کیا کچن میں گزارتی ہیں آرٹسٹ جو ہوتی ہیں؟ ہاں، موسٹلی تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کچن میں ہی گزاریں. بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو کھانا کم ہی آتا ہے، لیکن خیر اپنا میں بتا دوں مجھے آتا ہے، اتنا بھی نہیں آتا پر آتا ہے. کھانا کیا صرف انڈا بنا لیتی ہیں؟ نہیں، میں پراپر کھانا بنا لیتی ہوں. اچھا، پراپر کھانا کیا مطلب کیا بنا لیتی ہیں جو آپ کا فیوریٹ ہو، گھر والوں کو بھی بڑا پسند ہو؟ گھر میں جو ریگولر چیزیں کھائی جاتی ہیں، یعنی کہ بوائلڈ ایگ. جی نہیں. اچھا، بڑی عید پہ جو ہے نا گھر میں بڑے ماشاءاللہ کھانے جو ہے نا وہ بڑے مزیدار تیار ہو رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ وہ جو مکس بنتا ہے سب سے پہلا والا، فرسٹ والا، سب سے پہلے تو گھر میں کلیجی بنائی جاتی ہے. ہاں، ہمارے گھروں میں ہے کہ سب سے پہلے جیسے ہی قربانی کی جاتی ہے اس کے بعد فوراً جو ہماری گھر کی مائیں ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے کلیجی بنانے ہیں، وہی والا فوراً سٹارٹ بنتا ہے. وہ بڑا مزیدار کلیجی بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کھانوں کے جو ہیں وہ لائن لگ جاتی ہے. شفاق صاحب، آپ کیا بناتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ عید کے دن آپ نے بھی کبھی کوکنگ کی ہے کہ چلیں بیوی کا ہاتھ بٹا دوں؟ بیوقوف بنانے کے علاوہ بیوی کا ہاتھ بٹا دوں، تھوڑا اتنا محنت کر رہی ہیں. آپ کا جواب علیحدہ دوں گا، ان کا علیحدہ دوں گا. بات یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ جی میں مطلب اپنی بیگم کی ہیلپ نہیں کرتا، تو میرا خیال میں شاید وہ بڑا آدمی ہوگا. تو ہم تو مزدور لوگ ہیں، تو ہم ہاتھ بٹاتے بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے نے ہاسٹل میں لائف گزاری ہے نا، وہ لازمی کہیں نہ کہیں اس کو انڈا فرائی کرنا ضرور آتا ہے. تو مطلب آپ انڈا فرائی کر لیتے ہیں؟ میں تھوڑا اس سے آگے. اچھا، اس سے آگے چلے گئے؟ تھوڑا آگے چلے جائیں تو کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں. اور کبھی بہت موڈ ہو، اور خصوصاً عیدین پہ جو ہے نا اچھا مطلب کوئی ریسیپی دیکھ کے تو اس کو اچھی کوئی گوشت کا اور یا کوئی دیسی چکن کا یا چاول کا ہو گیا تو اس کو اچھا کوئی بنا کے تو بنا لیتے ہیں. عید تو چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی عید ہو، دونوں عیدوں پہ خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں اسپیشلی وہ عیدی ضرور مانگتے ہیں. تو آپ نے آج کتنی عیدی دی ہے؟ اچھا، اس میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹا میرا یہاں ہے نہیں، وہ باہر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بیگم کے پاس تو پرس بھی اسی کے پاس ہوتا ہے. کیا بات ہے، آپ اپنی ساری جو ہے اب بتائیں وہ مطلب اگر میں اس کو کہوں کہ یہ ہیں تو وہ سائڈ پہ وہ بھی کر لے، میں کیا کر لوں گا. کیا بات. اور نادیہ آپ کتنی عیدی دے چکی ہیں؟ یار عیدی یہ نہ پوچھیں، یہ بہت دکھی مومنٹ ہے ہمارا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف دیتے ہیں،
वो आर्टिस्टों का बहुत सारे लोगों के साथ प्यार भी होता है, जिस तरह कि वो अपनी कुर्बानियाँ देते हैं ना अपनी खुशियों की, तो लोग उन्हें जो उनके चाहने वाले होते हैं वो भी बड़ा सराहते हैं। हम जितनी देते हैं उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हमें मिल भी जाती है। सही। तो आज हम भी फरहान इनसे ईदी लेंगे ना, इन सबसे। हम तो छोटे हैं तो हमारी ईदी बनती है। हाँ बिल्कुल, ये देखें खुशी है, ये खुशी होती है। अब इतने पैसे तो दिए हैं ना सर आपको बेगम ने कि हमें ईदी मिल जाएगी, हमें ईदी दे सकें। हाँ कोई ऐसे पर्स उन्हीं के पास है मतलब आप खाली जेब आ गए हैं? नहीं पर्स ही उन्हीं के पास है। मैं बताता हूं, पैसे तो है पर्स में है, पर्स शौकत साहब के पास नहीं है। असल बात ये है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं पर्स में है जो है ना एटीएम कार्ड होगा वो दे दीजिए। हम हाजिर थे, मुझे वैसे पता नहीं था ये सवाल आप करेंगे, लेकिन वो इत्तेफाकन वहाँ। देखिए आपकी बात को देखते हुए अगर आप ईद का त्योहार और आपसे ईदी ना मांगेंगे कैसे हो सकता है? नहीं वो कर लेंगे, मतलब आजकल तो वो आपको पता है ना डिजिटल करेंसी का दौर है, तो वो कुछ कर लेंगे, ऐसा कोई हो सकता है, कोई ऐसी वही तो वो बात कर रहे हैं। मतलब खातिर जमा रखें आप। ये पूछ ले शौकत साहब से, एटीएम कार्ड अपने पास है? तो मैंने कहा एटीएम इनके पास होगा, पासवर्ड बेगम के पास। देते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी थोड़ा सा मिस कॉन्सेप्ट है जी, क्योंकि साफ़ी जो है वो एट द सेम टाइम वालिद भी होता है, भाई भी होता है। अच्छा जावेद साहब, बचपन में कैसे ईद गुजरती थी आपकी और आजकल कैसे आप गुजार रहे हैं, कैसा डिफरेंस देख रहे हैं आप बचपन की ईद में और आज की ईद में? फरहान भाई सच तो ये है कि जो बचपन की ईदें हैं वो आज भी याद हैं। असल ईदें ही टीन एज तक होती हैं, उसके बाद इंसान जिम्मेदारी निभा रहा होता है जी। तो बड़ा फ़र्क है। जब बकरे आते थे तो बकरों के साथ खेलना, उनको बाहर लेकर जाना, उनको फिराना खिलाना, ये सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ था। अब ये जिम्मेदारी होती है कि अच्छे बकरे मिल जाएं, अच्छी बैडी मिल जाए, अच्छे जानवर मिल जाए, अच्छा किसाब का अरेंजमेंट हो जाए। सारे जानवर का भी आप इंतखाब करते खुद ही? मैं 4-5 साल पहले तक तो खुद ही बहुत सिलेक्टिव था, खुद जाता था, सब कुछ खुद करता था। अब मेरा भतीजा माशाल्लाह यंग हो गया है, वो मुझसे बहुत उन्होंने ज़ोर से ये जो ना असाइनमेंट छीन ली है। तो अब वो ये क्या करता है कि मुझे क्लिप भेजता है कि ये जानवर है। मैं जैसे अशफाक भाई ने कहा, मैं इसी ओपिनियन का मालिक हूँ कि जानवर खूबसूरत होना चाहिए। बिल्कुल, उसके साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बकरा लें, बड़ा लें, बड़ी वैडी लें, छोटी लें, लेकिन उसे ब्यूटी होनी चाहिए। और ईद उल अज़हा का ताल्लुक़ ही इस वास्ते है कि इंसान अपनी कैपेसिटी से बढ़कर कुर्बानी करें। ईद का मतलब फेस्टिवल है, अज़हा का मतलब कुर्बानी है, इसे कुर्बानी वाली ईद कहा जाता है। ये सिर्फ बकरा या गाय कुर्बान करने का ये सिर्फ यही नहीं है। बेसिकली हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करना है कि जहाँ हम अब माशरे में हम कुर्बानी देने वाले बने, हम सेक्रीफाइस ख्वाहिशात की भी कुर्बानी, ख्वाहिशात की कुर्बानी, हम गरीबों का ख्याल करने वाले बने, हम रिस्पेक्ट देने वाले बने, अपने नॉलेज और स्किल को शेयर करने वाले बने। ये सब वो चीज़ें हैं जो माशरे में लोगों को हम बांटेंगे तो फिर हर रोज़ ही हमारी ईद होगी। मैं सच बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं जब किसी को कुछ देने में अल्लाह मुझे हिम्मत तौफीक देता है कि मैं कुछ देने में कामयाब हो जाऊँ, वो दिन मेरे लिए ईद का दिन होता है। और ये जो आप बकरीद की बात है, जितना खूबसूरत जानवर होता है, बचपन की बात आपने की थी, बचपन ही होता था कि पहले 1-2 साल पहले जानवर ले लिए जाते थे, उनको पालते थे। मुझे आज भी याद है कि जब जानवर ज़िबा होता था तो आंखों में आंसू होते थे। अब भी आ जाते हैं। अब हर साल होती हूँ। अब देखिए, अब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वो इसलिए नहीं होता कि वो एसोसिएशन बन नहीं पाती जो 1-2 साल में उसकी केयर करके बनती थी। मैं सच्चाई के साथ बात करूँगा। अलबत्ता आप फीमेल हैं क्योंकि आपका काम रोना ज़्यादा होता है, आप तो बात पे रो पड़ती हैं। ये क्या बात कर दी आपने? तो वैसे एफिलिएशन डेवलप हो जाते हैं, आपको फैमिली मेंबर बन जाते हैं, आप फैमिली मेंबर बन जाते हैं। आप ले लें। अब वो फ़र्क मैं महसूस करता हूँ कि वो नेग्लिजेंस है हमारी। मेरी अपनी बात करूँ, मेरी नेग्लिजेंस है। वैसे मेरा फ्यूचर में इरादा है, नहीं दे सकते होंगे ना आप, मेरा फ्यूचर में इरादा है कि टाइम नहीं भी दे सकता, जानवर खुद अपने पाले जाएं। इरादा है कि फिर ताकि उनके साथ मोहब्बत का एलिमेंट। अच्छा, आप थोड़ी बहुत कुकिंग भी आप जानते हैं? बचपन में आप बिल्कुल भी नहीं जानता। चाय बना सकता हूँ, जिंदगी में 2 दफ़ा चाय अपनी बेगम को मैंने पिलाई है, सिर्फ 2 टाइम। चलो ये तो इन्होंने तस्लीम कर लिया चाय अपनी बेगम को बना। अच्छा, और अंडा फ्राई कर सकता हूँ। ये 2 चीज़ें हैं जो आमलेट भी बना सकता हूँ। ये 2 चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। इसके बाद 3 होगी ना सर? 3 हो गई। फ्राई करना या आमलेट, चले 3 हो गई। आप मुझे मार्जिन दे रही हैं, आप मुझे अच्छे मार्क्स दे रही हैं। मुझे मैनेजमेंट का जो पर्सन होता है ना, वो गेट द थिंग डन बाय अदर्स विद लव, विद केयर, विद एप्रिसिएशन, विद मोटिवेशन, वो उसको ये फन आता है। तो बेगम को अब गुजारा नहीं है, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आपको अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए
तो आपकी बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कभी इस तरह हुआ कि घर में भी जो है कभी बेगम ने भी कहा हो कि चलिए आज कुछ मेरे साथ खड़े होके हेल्प करवा दें, कुछ आपको भी थोड़ा सा पकाने का असमा बहुत अच्छी लग रही हैं इस टाइम, आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, आपका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है, आपने मेकअप भी अच्छा किया थैंक यू सो मच, थैंक यू। यही काम है वहाँ पे करके जान छुड़ा लेते हैं। सारे मेरे डिजाइनर का कमाल है। यही काम है वहाँ पे करके जान छुड़ा लेता हूँ। तो सच ये है, तारीफ करके बातों में ऐसे देखिए फीमेल को बेगम को तारीफ चाहिए होती है। अगर आप बेगम की तारीफ करना जानते हैं, ये जरा वजाहत सिर्फ बेगम को। हाँ देखिए, मैं अशफाक भाई तारीफ तो एज ए लीडर आपके टीम मेंबर्स को भी चाहिए, आपके फ्रेंड्स को भी चाहिए, सोसाइटी को चाहिए, अली इमरान को चाहिए, इनको हमें बकअप करना चाहिए यंग एज में इन्होंने इतना अच्छा काम किया। अली इमरान साहब तो माशाल्लाह जो लोग वाशरूम में अच्छा काम कर रहे हैं हम उनको मोटिवेट करें, उनको अप्रेस करें। आप बिलीव यू मी कि उनके कलर्स और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ज़्यादा वो ग्रूम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बेगम को भी आगे बढ़ाने का तरीका ये होता है कि आप तारीफ से काम लें, उसमें कंजूसी ना करें। तारीफ के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। वैसे ये एक बड़ा अच्छा टिप दिया उन्होंने। मोटिवेशनल स्पीकर है, साबित किया। आपसे भी जानेंगे, आप भी कुछ कुकिंग करते हैं जी बिल्कुल, या सिर्फ अम्मा के हाथ के बने हुए पराठे खाते हैं? नहीं जी, मैं तो मिसाले वाली रोटी भी बना लेता हूँ, शामी अच्छा, कबाब भी बनानी वाह, आती है, क्या चाय बात भी बनानी आती है, मुझे अंडा भूख फ्राई लग रही है। ये सब चीज़ें जो है ना, अब यहाँ से जाने के बाद घर ये कुछ ही होना है, 2-3 मतलब दिन। आप खुद जाके सारी चीजें रेडी हाँ करेंगे? जी, करते हैं जी। अच्छा, क्या बात है, फिर फैमिली वाले तो बड़े खुश होंगे कि हाँ चलें। वो भी खुश हैं, स्पेशली ईद के तीसरे दिन ना हम पूरी फैमिली को हम इनवाइट करते हैं। तो साथ में उनके इनके अगर इनके जब पहले होती थी रबी अव्वल का महीना आता था तो सर्दियों में तो मैंने कश्मीरी चाय खुद बनाकर पेश की थी। अच्छा शौकत साहब, आपने मोहब्बत की है बचपन में? ये दोनों की पूछ ले, बचपन अब या देखें, बचपन वाली ये अब दोनों आपके हमलों का जवाब पहले मुझे देना पड़ेगा। जी प्लीज। ये बात ये है कि वो जैसे कहते हैं ना कि जिसको अगर सूरत से जिसको प्यार नहीं वो मूर्ख इंसान नहीं। तो मोहब्बत जो है ये बुनियादी तौर पे ये बिल्टन है इंसान के अंदर। मैं वैसे वो मजाजी मोहब्बत की बात हजरत ये भी उसी चीज़ में आती है। देखें वो हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि अगर इंसान से आप सिर्फ ये निकाल दें तो बाकी तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये नेचुरली कोई बंदा कहता है कि मैंने जी कोई आप ये पूछना चाहते हैं ना किसी लड़की से, तो हाँ की कोई एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा की, लेकिन बहरहाल कामयाबी जो है वो बेगम के साथ ही हुई। अच्छा सर, सुर की बात हो रही थी, जैसे सुर के साथ, सुर में हमारे साथ इतनी सुरीली आवाज़ मौजूद है, मौसीकी साथ ना हो तो ऐसे थोड़ा खाली खाली रहता है। जी जी, मैं जरूर सुनाऊंगी। ऐसे कैसे क्यों ना हम नादिया हाशमी से जो है एक अच्छा सा खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं और इंजॉय करते हैं, हमारे नाज़रीन भी इंजॉय करें। इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा। इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा उदों जदों होंदी बेवफाई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई, हाँ चस बड़ी आई है।
वेलकम बैक नाज़रीन। और इतना खूबसूरत सॉन्ग हमने सुना नादिया का और बड़ा मज़ा आ रहा था। आपने एंजॉय किया? फिर बहुत एंजॉय किया, बड़ा ज़बरदस्त आवाज़ है इनकी माशाल्लाह। नादिया की इतनी प्यारी आवाज़ है, हम इनसे हमेशा कोई ना कोई फरमाइश करते रहते हैं, इनसे सॉन्ग सुनते रहते हैं जब भी हमारी मुलाकात होती है। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह ये गाती बहुत हैं। खूबसूरत गाया इन्होंने। अच्छा, आपको बचपन से ही शौक था नादिया सिंगिंग का कि आपने आपको ये था कि मैंने सिंगर ही बनना है? नहीं ऐसा नहीं था। वो तो स्कूल लाइफ में जैसे आपको पता है मिले नगमे नाते और ये वो कंपटीशन वो जब पूरा हुआ तो फिर मैंने स्टार्ट किया आर्ट्स काउंसिल, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल से सीखना। वो फिर माशाल्लाह ये कि मौके बहुत मिलते गए, प्लेटफॉर्म इतने मिलते गए कि। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि आर्टिस्ट को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा। अब तो और भी मुश्किल हो गया, जितना आसानियाँ हो गई है ना सोशल मीडिया को लेके, उतनी मुश्किल भी हो गई हैं। वो इसलिए कि अब हर बंदा ही सिंगर है। आप किसे सुनना पसंद करते हैं? मैं किसे सुनना पसंद करता हूँ? मैं अपनी बेगम को सुनना पसंद करता हूँ। वो तो सबको सुनना पड़ता है, मजबूर है। जो ना भी सुनना चाहे वो भी ये नहीं क्लेम कर सकता कि मैं अपनी नहीं तो बेगम वो लेकिन सर हम उस सुनने की बात नहीं कर रहे। आपको सुर में सुनाती हैं। अच्छा, Believe you कहीं me, she is a very good singer माशाल्लाह। और अच्छा। बहुत अच्छा गाती हैं। वाह। तो मेरी चाह वहीं पूरी हो जाती है। सही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी अशफाक भाई, किस तरह के वो गजलें उनसे सुनते हैं या मैं पुराने गाने उनसे सुनता हूँ। मोस्टली ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आप उनको कभी फरमाइश कर देते हैं कि कभी आप कभी मेरे दिल में ख्याल आता क्या बात है? थोड़ा सा अगर आप गुनगुना दें तो क्या ही बात मैं है। इस मामले में बहुत निकम्मा हूँ। अल्लाह ने इंसान की फितरत के अंदर एक चीज़ रखी है जो इन बिल्ट है हमारे अंदर, टू लव टू बी लव्ड। हम इस दुनिया में आए ही प्यार करने और प्यार करवाने के लिए आए। ये जज्बा हर इंसान के अंदर मौजूद है और अगर इसकी तस्कीन सही तरीके से की जाए कि किसको प्यार करना है, कहाँ प्यार करना है और कहाँ से प्यार लेना है, तो हमारी ज़िंदगी बन जाती है। और अगर ये तस्कीन गलत तरीके से पूरी हो तो ज़िंदगी बिगड़ जाती है। जज्बा एक ही है, उसका यूज़ नेगेटिव ही पॉजिटिव है। ईदैन है, ये जो भी फेस्टिवल है पूरी दुनिया के अंदर, हम मुसलमान हैं, हम अपने हिसाब से मनाते हैं और जो मज़हब के लोग हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसमें खुशी और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार और बांटने का ये जो जज्बा है, ये बुनियादी तौर पे उसका सबक ये अच्छा सर, बड़ा हम देखते हैं ना कि आजकल थोड़ा ये मोबाइल की वजह से भी काफ़ी घर में एक ही घर में रहते हो तो थोड़ा आप दूसरों से दूर रह रहे होते हैं, एक ही जगह पर रह कर भी तो साथ नहीं होते। लेकिन ये जब ईद आती है तो इस त्यौहार में सारे लोगों का यही कोशिश होती है कि हम लोग जो है जी बहन भाइयों को बिल्कुल इकट्ठे हो जाएं, तो इकट्ठे जो प्यार और मोहब्बत बांटने का मज़ा आता है ना, वो कहीं और नहीं। ऐसा ही है। अच्छा, ईद के हवाले से थोड़ा ये भी बताएंगे कि जितना बहुत से गैदरिंग होती है, बारबेक्यू चल रहे होते हैं, फरहान आप बताएं ना, आप खुद बकरा ज़िबा करते हैं या आप भी कसाई को ढूंढते हैं? मैं ये बताऊं, मैं 6th क्लास से मैं हॉस्टल लाइफ मैंने गुजारी। जैसे शौकत इशफाक साहब ने शुरू में फरमाया कि मैं दूर रहा हूँ, हॉस्टल लाइफ गुजारी और मुझे कुकिंग आती है। मुझे भी बहुत कुकिंग आती है क्योंकि मैं अपनी फैमिली से काफ़ी अरसा दूर रहा हूँ। और मैं एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ईद के त्यौहार पे भी मैं अपनी फैमिली से दूर रहा हूँ, जिससे मुझे बड़ा ये फैमिली को ये मैनेज करना कि अपनी फैमिली से दूर रहते हुए ईद के मौके पे अपनी फैमिली से दूर हूँ, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उस बंदे के लिए जो परदेश में रह रहे होते हैं। तो अभी आप भी अपनी बेगम से फरमाइश करते हैं या वो कभी आपसे फरमाइश कर देती हैं कि आज कुछ बना अभी तक उन्होंने कोई फरमाइश नहीं की, वो खुद ही बनाती हैं जो भी बनाती हैं। अच्छा। कुकिंग वगैरह खुद ही करती हैं। आप हेल्प आउट नहीं? मैं बकरा वगैरह ज़िबा कराने में हेल्प आउट करता हूँ और कोई वो घर का काम बाकी खुद ही संभालती हैं क्योंकि वो भी वर्किंग लेडी है, मैं भी जॉब करता हूँ, इस वजह से फिर वो डिफिकल्ट होता है कि मैं। आप अच्छे माशाल्लाह हस्बैंड हैं, आपको मुबारक हो। मैं बचा हुआ अल्लाह का शुक्र। मैं जवेद साहब की तरह नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बचा हुआ हूँ कि मैं आपकी तरह भी नहीं हूँ जिस तरह आप बिल्कुल घर में किचन में उनकी हेल्प कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर, मैंने देखिए मेरी बात सुने, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बिल्कुल उनकी मतलब ये कि किचन में जाके घुस जाऊँ। एवं कदे दिल करता ना कोई एक आधा कोई छोटा मोटा वो तो सब कोई करते हैं, वो कर ले। सब खाने के लिए जाते हैं, पकाने नहीं जाते। खाने के शौकीन है, खाने का अच्छा खाना जो है। और मेरी बेगम इंतहाई अच्छा खाना पकाती है, ये भी एक बड़ी वजह है। बस अब हम सारे जो है ना रेडी हो जाएं और यहाँ से सीधा उधर ही जा रहे हैं। वेलकम। और वो आपको पता यूं लगेगा कि आप अपने घर में हैं और वो फौरन सारी चीजें तैयार भी हो जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं। सही है। अच्छा नादिया, आप बताएं, घर में कुकिंग जो है वो कभी कभार मौका मिलता है, सही है? हाँ, तो जैसे ईद पे जो है स्पेशली आपके काफ़ी मिलने जुलने वाले दोस्त भी आ रहे होते हैं, आपको बहन भाई भी आ रहे होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि कुकिंग आप खुद करती हैं या फिर
नहीं, बहुत ज़्यादा कम, लेकिन ये है कि कोशिश होती है कि एक आध डिश तो मैं ज़रूर बना लूं ताकि मैं दोस्तों और रिश्तेदारों में सच्ची हो जाए, आज मैंने बनाया, मैंने कुछ बनाया। तो आज आपका क्या, यहाँ से शो से जाएंगे तो क्या बनाने का इरादा है आपका? मैं हो सकता है शामी कबाब बनाऊं, मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं, या मुझे कीमा जो है ना वो भुना हुआ बड़ा अच्छा लगता है। वो रखे जा सकते हैं, उसको रख लीजिए। अच्छा, शामी कबाब स्टोर हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो कुकिंग, अच्छा जो इंसान खुद कुकिंग कर रहा हो ना वो काफी हद तक उससे खाया नहीं जाता, क्या आप भी ऐसे ही है? ऐसे ही है बिल्कुल। जब बना के आओ ना तो आपको कोई कहे कि आप साथ बैठ के खाओ, तो ये उस वक्त फौरी नहीं होता। बाहर के मुल्कों में जो यूरोप है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका है, या जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे ज़ाहिर है काफ़ी सारे बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, PhDs के लिए जाते हैं, पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं सब। वहाँ जो हमारा ईद इस तरह है, यहाँ 5 छुट्टियाँ हो गई, 8 छुट्टियाँ हो गई, या मिडिल ईस्ट वगैरह में हो जाती हैं, वहाँ नहीं होती। वहाँ ईद वाला दिन भी वर्किंग डे होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए, उन बड़ों के लिए, उन लोगों के लिए जो टेम्परेरली भी वहाँ रह रहे होते हैं या परमानेंट रह रहे होते हैं। फिर उनको ईद मनाने के लिए एक अपना दिन जो है अलग, अगर उनकी ईद को जिस तरह अब ये बुध है जी, तो वो अब करेंगे सैटरडे को या वीकेंड, एक गेट टुगेदर टाइप। हाँ, वो get ऐसे ही है। तो ये उनको एक अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपनी खुशी जो है बिल्कुल वो किस तरह करके उसको मैनेज करते हैं अपनी खुशी को। बड़ा मुश्किल होता है परदेश काटना, कौन सा आसान काम है। जब आप परदेश काट रहे होते हैं तो आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, अपने एक जो अपनाइयत होती है वो नहीं होती, तो आप हर चीज़ को मिस कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ जो बाहर हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। अब बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं लेकिन फ्लाइट्स नहीं चल रही, वो नहीं आ पा रहे हैं। मेरे कज़न्स हैं वो बेचारे परेशान हैं कि ईद पर वो आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो वाकई उनके लिए बड़ा टफ है। लेकिन हम उनसे कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं जल्दी फ्लाइट स्टार्ट हो जाए। देर से खामोश बैठे। अली इमरान, आपने भी कभी ऐसा हुआ कि ईद आपकी फैमिली से दूर गुजारी हो आपने? नहीं, जितनी भी ईदें गुजरी हैं फैमिली में गुजरी हैं। मेरे भाई हैं वो UAE में होते हैं, वो बताते हैं जी ईद नमाज पढ़ने के बाद सब अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं, और हमें बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान की ईद को। और वहाँ अक्सर वो मेरे भाई कहते हैं मेरे आंख से आंसू निकल आते हैं कि हम यहाँ पे रोज़गार के सिलसिले में आए हैं। UAE में तो सेलिब्रेट करते नहीं होते नहीं, वहाँ पे यानी कि सिर्फ ईद नमाज होती है, उसके बाद अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। वहाँ पे भी सूरत हाल है। ईद नहीं होती जिस तरह हम मनाते हैं ना, अपनी फैमिलीज में गेट टुगेदर हो रहे होते हैं, हम मेहमान बन के जा रहे होते हैं, वहाँ ये चीज़ नहीं है। जैसे आप एक बात देखें कि पाकिस्तान जैसी फैसिलिटीज मेरा ख्याल किसी में मुल्क में आपको नहीं मिलेगी। थोड़ा सा इसको क्लैरिटी मुझे नहीं हुई, या पता नहीं नाज़रीन को भी गलत ना हो जाए, कि वो होता ये है कि कोई अगर जॉब इस तरह करें जो एसेंशियल जॉब है, जॉब है, या आप किसी जिस तरह यहाँ भी पाकिस्तान में देखें हम ईद मना रहे होते हैं, कुछ लोग आपको सर्व कर रहे होते हैं, बुनियादी तौर के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है? हाँ, वो ऑनलाइन जॉब करते हैं ना, तो फिर फास्ट फूड के हवाले से ऐसा ही है। लेकिन आज के ईद का दिन अशफाक भाई, उनकी छुट्टियां जो हैं वो हमसे ज्यादा होती हैं, एक बात, और वो इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे अभी आपने बताया था कि 2-4 दिन बाद सैटरडे या संडे को होता है। हर जो रीजन है ना उसका कल्चर तो अपना होता है ना, हमारा कल्चर है, और हम कल्चर के हवाले से भी और अपने मजहबी हवाले से भी उसकी सेलिब्रेशन जो है ना दोनों को मिला के सेलिब्रेट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, जो आपने कहा फरहान, जिस आपने कहा कि इसमें हमारा खुशी का एक जो आंसर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा नादिया, आजकल जैसे टिकटॉक जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो कुछ थोड़ा मैं, क्योंकि नादिया भी जो है बड़ी एक्टिव रहती हैं टिकटॉक पे हम देखते रहते हैं टिकटॉक पे, तो कुछ थोड़ा सा टिकटॉक के हवाले से भी बताएं, तो कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा है, देखिए इसको आप जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए रखें तो अच्छा है आप, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि जो टिकटॉक को लेके बहुत सीरियसली हुए हैं, कुछ स्कैंडल्स वायरल हो रहे हैं और ये वो फलां, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को जो छुपा हुआ टैलेंट था वो भी निकला है, उनको मौके मिले हैं, उनको फेम मिला है, आज वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो उसमें नेगेटिविटी आई थी उसकी वजह से वो बैन भी हो गई थी, तो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, मतलब बेहतरी की तरफ चल रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया, सर आपसे भी थोड़ा सा ये जानूंगी, जिस तरह आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों का जो है रुझान बढ़ गया है, लोग यूट्यूब चैनल अपने बना लिए हैं, लोगों ने उस पर आपका तो ये अपनी आवाज़ को उस तरह उन्होंने बुलंद किया कि जो अगर आप मतलब चैनल्स पे नहीं आपको मौका मिल रहा, आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहाँ आप अपने टैलेंट को शो कर सकें, तो फिर वो सोशल मीडिया की तरफ आए। उनके बाद क्या कहना चाहेंगे आप, जो बहुत सारा ऐसा टैलेंट भी होता है जो मौका उनको नहीं मिलता, बहुत सारी ऐसी वो होती है कि उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे अभी भी आर्टिस्टों को बहुत मुश्किलात का सामना करना, बड़ी स्ट्रगल
करनी पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में सोशल मीडिया? देखें, इसमें ना कई फेजेस, एक तो टेक्नोलॉजी हाई टेक, ज़ाहिर है कोई इसको रोक नहीं सकता क्योंकि दस्तरस है सबकी। जब इसके ऊपर दस्तरस हो जाती है तो फिर जो आपका अपना अगर आप चाहते हैं कि मैंने लिखना है तो लिख के उसके ऊपर बोलना है तो बोलेंगे आप, तो जाहिर है वो एक इतना एक अच्छा होगा, वायरल होगा, या उसको ज़्यादा लोग सुनेंगे। अगर आपने कोई चीज़ें रिकॉर्ड की है तो वो उसको देखेंगे, जितने ज़्यादा होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो आपकी आवाज़ मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचेगी। ठीक है ना। आप म्यूज़िक के हवाले से कहें तो म्यूज़िक के हवाले से ये है कि टैलेंट है, नहीं पहुंच सकता वहाँ, आप वहाँ से अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके और उसको भेजते हैं, यूट्यूब पे भेजते हैं या फेसबुक पे लगाते हैं या किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क के किसी भी उस पे लगाते हैं। आपको बहुत सारी सहूलियात होती हैं, जिस तरह अभी, हाँ जी, जिस तरह जावेद साहब भी टीचर हैं तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इसके बारे में बड़ा डिफरेंट ओपिनियन का मालिक हूँ। देखिए, जिनका पैशन है वो पैशन की वजह से टिकटॉक को एज ए सोर्स यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए तो इट्स गुड। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि न्यू जनरेशन के लिए बहुत डेंजरस साबित हो रहा है। अब जब आपको विदाउट डूइंग एनीथिंग एक सडन यानी कि हाइप मिल जाती है, एक बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, तो शॉर्टकट रास्ते पे बच्चे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। मैं स्टूडेंट के माइंड और बच्चों के माइंड की बात कर रहा हूँ। वो मेहनत को छोड़कर वो समझते हैं कि शायद हम भी ऐसे फेमस हो जाएं, जबकि वो चंद लोग हो सकेंगे, सब नहीं हो सकेंगे। और चंद लोगों के जो बच्चे जो लोग होंगे वो स्पॉइल होते हैं। इसलिए मैं बच्चों को मैसेज देना चाहूँगा कि वो काम करे जो उनका पैशन है, जिसे वो प्यार करते हैं, और वो मेहनत के रास्ते को अपनाएं। और मेहनत का रास्ता सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है। अच्छा, इतनी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है कि दिल नहीं चाह रहा कि ये प्रोग्राम ख़त्म हो और यूं ही हम जो चाहतों का, मोहब्बतों का ये जो सिलसिला जारी है ये जारी सारी रहे। लेकिन क्या करें, क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो कम है, तो हम चाहेंगे कि अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मैसेज लेंगे कि हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे। जी शौकत इशफाक साहब, प्लीज़ आप। व्यूवर्स के लिए और तमाम लोगों के लिए, आपके लिए भी, सब हम के लिए, बात यह है कि ये जो ईदैन होती हैं, ईदैन से हट के भी ऐसा रिसेशन है पूरी दुनिया में चल रहा है, कोविड है, और ये अभी मालूम भी नहीं, क्योंकि इसकी जो है ना तब्दीली होती जा रही है और आगे और नुकसान होता जा रहा है। बहुत सारे ममालिक जो हैं इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इस वक्त लोगों को मदद की ज़रूरत है और ख़ुशी इसी में है। फेस्टिवल यही है, ईद यही है कि आप किसी को अपने साथ शरीक कर लें और उसको शरीक करें जो ज़रूरतमंद हो, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। आप उसको देखें और उसके साथ ईद की खुशियाँ मनाएं। हम अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ हम करते रहते हैं, खुश भी होते हैं, कहके भी लगाते हैं, अच्छे खाने भी पकाते हैं। लेकिन हम अगर कोई अच्छा खाना पका के उनके साथ सेलिब्रेट कर लें, अगर उनके साथ नहीं सेलिब्रेट यूँ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको मदद करके उनकी सेलिब्रेशन कर लें, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ईद नहीं है। बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया, इससे बड़ी ईद नहीं। बहुत शुक्रिया। नादिया, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि जो भी यहाँ पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत सारी दुआएं और ईद मुबारक, और जितना हो सके खुशियाँ बांटें, क्योंकि हमारे जो लास्ट 2 ईयर हैं वो बहुत बैडली गुजरे हैं। तो बस अब जितना हो सके आगे यही दुआ करें कि एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। बहुत शुक्रिया नादिया। जावेद साहब से भी कहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे? आसमा बेटी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ हम अल्लाह से चाहते हैं कि हमें मिले, वो हम लोगों में बांटना शुरू कर दें। अल्लाह से अगर आप चाहते हैं कि मुझे दौलत मिले, दौलत लोगों में बांटें, अल्लाह का वादा है मल्टीप्लाई होकर आएगी। नॉलेज चाहते हैं, स्किल चाहते हैं, लोगों में बांटना शुरू कर दें। रिस्पेक्ट चाहते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। जो चीज़ आप अल्लाह से चाहते हैं कि आपको मिले, वो लोगों में बांटना शुरू कर दें। अल्लाह की सुन्नत है कि वो चीज़ मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ आएगी। और ये वो मौका है कि कुर्बानी में हम गरीब लोगों का ख्याल रखें। अशफाक साहब ने समुंदर को कूदें बंद कर दिया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैं भूलना नहीं चाहिए कि जो वो लोग जिनको कभी पूरे साल में मटन नसीब नहीं होता,
उनको बीफ नहीं मिलता, वो गोश्त नहीं खाते, ऐसे लोग मौजूद हैं। तो उन तक हमें पहुंचना चाहिए, वहाँ जाके उन तक रसाई हासिल करना चाहिए, उनको अपनी खुशियों में शामिल हाल करना चाहिए। बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया है। अली इमरान, आप क्या कहना चाहते हैं? अब जिन घरों में ईद की कुर्बानियाँ हुई हैं, गोश्त बना है, वो फ्रिजों में मत रखें, जो गरीब लोग हैं उन तक पहुँचाएँ। अच्छा, हमारे तमाम गेस्ट जितने भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ आए। शौकत इशफाक साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपकी खुशियाँ हमारे व्यूवर्स के साथ मिलकर आपने बांटी। बहुत शुक्रिया। नादिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई और अपने इतने खूबसूरत सॉन्ग हमें सुनाए कि हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया, और लास्ट में भी अभी आपसे एक सॉन्ग सुनना बाकी है। और जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। अली इमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया, और फरहान आपका तो बहुत ही शुक्रिया आपने बड़ा साथ दिया हम लोगों ने एक दूसरे के। यहाँ पे हमारी पीटीवी की हमेशा कोशिश होती है कि हम यहाँ मिलजुल कर ईद की खुशियों को जो है वो बांट सकें, मोहब्बत बांट सकें, और लोगों की चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहटें लेकर आ सकें। तो हमें इजाज़त दीजिएगा, और इसके साथ ही हम नादिया हाशमी से जो है वो खूबसूरत सॉन्ग सुनेंगे।